Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to study about Krebs cycle or TCA cycle or citric acid cycle. Okay, so these are some of the names of this cycle. TCA stands for tricarboxylic acid cycle. Before proceeding towards the video, I just want to request to you all to please like, comment, share and subscribe to my channel. And if you get any doubts and if you have any suggestions about this topic or otherwise, you can definitely comment down below in the comment section. I'll definitely look after each comment and try to reply all. Okay, so let's get started. Let's understand Krebs cycle. So see, Krebs cycle is a part of aerobic respiration. Like aerobic respiration comprises of 4 cycles, and Krebs cycle is one part of it. I have already made a video on the detailed version of aerobic and anaerobic respiration, which includes all the cycles included in each type of respiration. So if you want to check out that video, please do check out. I will definitely post the link in the description box below. Okay, so let's get started. Let's understand about the citric acid cycle, and how does it facilitates the functioning and aerobic respiration in our body. So it is a central metabolic pathway of aerobic organisms. जैसे कि मैंने आपको कहा, it's a part of aerobic respiration. So all the organisms which respire through aerobic mechanism need Krebs cycle to be performed in their body. Like it is a central metabolic pathway for them. Okay, it takes place in mitochondria for eukaryotes. For prokaryotes, it takes place in cytosol, right? Because the organelles are not present in prokaryotes. What Krebs cycle does is it oxidizes acetyl CoA to carbon dioxide and water. Okay, this is a simple definition, or in layman terms how I can explain about citric acid cycle. It produces NADH as the end result, FADH2, GTP, ATP. Okay, it also provides, like this cycle, it's a sequential step cycle. So with each step it produces a biosynthetic intermediate, which is very useful for some biosynthetic pathways in our bodies. Okay, so it provides intermediate for all those mechanisms. Okay, so moving forward, we are going to understand the entry of acetyl CoA into the cycle. So see what happens. I'll come from the start. So glucose जो होता है, it converts into pyruvate. See, the point of performing all these cycles by our body is to make or to convert organic compounds into simpler compounds or in organic form, which can be then consumed by our body, right? There is a specific type of form which our body can consume. Our body cannot consume any type of substance for that matter. So the point is that it needs to be converted to a form which can be soluble by our body, which can be absorbed by our body, right? So acetyl CoA कहाँ से आता है? ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लाइकोलिसिस से पाइरूवेट बनता है, देन उसके बाद बीटा ऑक्सीडेशन होता है फैटी एसिड्स का, एंड अमाइनो एसिड्स जो होते हैं, फैटी एसिड्स जो होते हैं उसका बीटा ऑक्सीडेशन, अमाइनो एसिड्स जो होते हैं उसका कैटाबॉलिज्म होता है. ठीक है, वहां से हमें एसिटाइल CoA मिलता है. ओके, सो देयर इज दिस साइकिल जहाँ पर ग्लूकोज पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है. पाइरूवेट जो होता है वो पाइरूवेट दूसरी साइकिल में एंटर करता है, जिसे हम लिंक रिएक्शन बोलते हैं, या फिर पाइरूवेट डीकार्बोक्सिलेशन बोल सकते हो, पाइरूवेट ऑक्सीडेशन बोल सकते हो. उस रिएक्शन में पाइरूवेट कन्वर्ट होता है इनटू एसिटाइल CoA. देन वो एसिटाइल CoA एंटर करता है इनटू दिस Krebs साइकिल. फिर इस Krebs साइकिल से जो एंड प्रोडक्ट बनता है दैट एंटर्स इनटू ETC. दैट इज हाउ दिस साइकिल वर्क्स. ओके, तो अभी हम थर्ड पार्ट पर हैं. I have already made a video on glycolysis, so it is there in the video section. You can definitely go down and check. Krebs cycle I'll upload this video, and so we are left with 2 more cycles to complete the aerobic reaction part. We will do it. Okay,
सो कैटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड्स, इन सबसे हमें एसिटाइल CoA मिलता है. It combines with oxaloacetate 4 carbon which is a 4 carbon compound. oxaloacetate के साथ वो combine करता है और combine करके वो citrate बनाता है which is a 6 carbon compound. Okay, so this reaction is catalyzed by citrate synthase. So this is the starting reaction of Krebs cycle where acetyl CoA which we get from link reaction, this converts with oxaloacetate which is a 4 carbon compound. Now these two after combining makes a 6 carbon compound which is also known as citrate. It is catalyzed by citrate synthase. So this is the first step on initiation step of the cycle. So this is the citric acid cycle or Krebs cycle or tricarboxylic acid cycle, however you want to call it. So see, we are going to start from the first step. So as I said, oxaloacetate बनता है इस रिएक्शन में every time, right? oxaloacetate एसिटाइल CoA के साथ ऐड होकर बनाता है citric acid. ठीक है? oxaloacetate का कंडेंसेशन होता है with oxaloacetate is a 4 carbon unit. It condenses with the acetyl group of acetyl CoA which is a 2 carbon unit. acetyl CoA का जो acetyl group होता है उसके साथ उसका कंडेंसेशन होता है. जब oxaloacetate रिएक्ट करता है विद एसिटाइल CoA एंड वाटर और एसिटाइल CoA के साथ जब वो रिएक्ट करता है तो वो सिट्रेट को प्रोड्यूस करता है. सिट्रेट को प्रोड्यूस करता है और कोएंजाइम A को प्रोड्यूस करता है. सो नाउ यू कैन सी कोएंजाइम A ये प्रोड्यूस हुई जब उसने रिएक्ट किया और ये सिट्रिक एसिड ये प्रोड्यूस हुआ व्हेन oxaloacetate रिएक्टेड विद एसिटाइल CoA एंजाइम एंड वाटर. ठीक है, ये एंजाइम जो है इस रिएक्शन को, बिकॉज इट्स एन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, इट इज ऑल्सो फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस जहां पर वाटर मॉलिक्यूल निकलता है. ये कैटेलाइज्ड होता है सिट्रेट सिंथेस से. इस एंजाइम को, इस रिएक्शन को कौन कैटेलाइज करता है? हाँ, सो इट्स एल्डोल कंडेंसेशन और हाइड्रोलिसिस हो रहा है, यानी कि पानी की वजह से वो मॉलिक्यूल्स टूट रहे हैं. इस रिएक्शन को कौन कैटेलाइज करता है? Citrate synthase is the enzyme which synthesizes the reaction. Citrate synthase जो होता है, citrate जो मॉलिक्यूल होता है जो बना है इससे, उसका कोई कायरल सेंटर नहीं होता. एंड बिकॉज कायरल सेंटर नहीं होता, सी कायरली सिमेट्रिक होना, यानी कि दिस इज अ केमिकल कंपाउंड. सो इफ यू नो केमिकल कंपाउंड, अगर आपने पढ़ा है कायरल सेंटर क्या होता है, दैट इफ इट इज सिमेट्रिकल फ्रॉम बोथ एंड्स, तो कायरल सेंटर अगर है तो ठीक है, बट कायरल सेंटर नहीं होता है इसका सिट्रेट का, but has the potential to react asymmetrically. But it has the potential to react asymmetrically. सिट्रेट जो होता है उसका कोई कायरल सेंटर नहीं होता, लेकिन उसके पास पोटेंशियल होता है कोई भी असिमेट्रिक एंजाइम के साथ रिएक्ट करने का. तो ऐसे कंपाउंड को हम प्रोकायरल सेंटर बोलते हैं, प्रोकायरल मॉलिक्यूल बोलते हैं, जिसके पास खुद का कायरल सेंटर नहीं है, बट अगर कोई एंजाइम है जो असिमेट्रिकली रिएक्ट करती है तो उसके साथ वो कंबाइन होके इट कैन मेक अ कंपाउंड, जिसे हम प्रोकायरल मॉलिक्यूल बोलते हैं. या सो मूविंग फॉरवर्ड, स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 एक आइसोमराइजेशन रिएक्शन होती है. आइसोमराइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, पहले वाटर को रिमूव कर दिया जाता है. सो इफ यू कैन सी इन दिस, वाटर को पहले रिमूव कर दिया जाता है, फिर वाटर को वापस से ऐड किया जाता है. सो वाटर को जब हम रिमूव करते हैं और वापस से ऐड करते हैं तो वाटर जहाँ से रिमूव हुआ, जिस पोजीशन से रिमूव हुआ उस पोजीशन पे ना जाके दूसरे पोजीशन पर आके ऐड हो जाता है. ये एंजाइम, इस स्टेप को जो एंजाइम कैटेलाइज करती है वो एकोनिटेज एंजाइम होती है. आइसोमराइजेशन, इफ यू नो, आइसोमराइजेशन बेसिकली सेम मॉलिक्यूल, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सेम कंपोनेंट्स रहते हैं, लेकिन जस्ट उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है, उस रिएक्शन को हम आइसोमराइजेशन कहते हैं. पहले पानी निकला और फिर पानी वापस से ऐड हुआ, हाइड्रोलिसिस, वाटर मॉलिक्यूल फिर से ऐड हुआ, इसकी वजह से वो दूसरी पोजीशन पे ऐड होता है. तो पोजीशन चेंज होने की वजह से एक आइसोमराइजेशन और रिएक्शन हो जाती है. उस रिएक्शन को कैटेलाइज करती है एकोनिटेज एंजाइम. एकोनिटेज एंजाइम का इनहिबिटर जो होता है वो फ्लोरोएसिटेट होता है. फ्लोरोएसिटेट बेसिकली ब्लॉक कर देता है सिट्रिक एसिड साइकिल को बाय इट्स मेटाबॉलिक कन्वर्जन ऑफ फ्लोरोसिट्रेट, जो कि एकोनिटेज का इनहिबिटर होता है. सो उस तरीके से because fluorocitrate अगर it's an inhibitor of econitase. So fluoroacetate अगर fluorocitrate का मेटाबॉलिक कन्वर्जन कर देता है, so fluorocitrate एक इनहिबिटर है econitase का, वो सिट्रिक एसिड साइकिल को रोक देती है. ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू द थर्ड स्टेप. थर्ड स्टेप में अब क्या होगा,
In first step we have done condensation and second step we have done isomerization. थर्ड स्टेप में अब हमारे पास जो प्रोडक्ट है दैट इज आइसोसिट्रेट. आइसोसिट्रेट से हमें अल्फा कीटोग्लूटारेट बनाना है. तो आइसोसिट्रेट से क्या होता है, ऑक्सीडेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन होता है. सो आइसोसिट्रेट इज फर्स्ट ऑक्सीडाइज्ड एंड देन डीकार्बोक्सिलेटेड. तो उससे बनता है डी अल्फा कीटोग्लूटारेट प्रोडक्ट जिसको हम ऑक्सोग्लूटारेट भी बोलते हैं. सो ये एक ऑक्सीडेशन से क्रेब्स साइकिल के अंदर 4 ऑक्सीडेशन स्टेप्स होते हैं. दिस इज द फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेप. आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट बनता है, वो फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेप होता है. सो ये जो स्टेप होता है यहाँ पर जो कार्बन जिसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है ना, कन्वर्टेड टू अ कार्बोनिल ग्रुप. जिसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप था जिस कार्बन के पास, उससे वो कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन बन जाता है. अभी इमीडिएट प्रोडक्ट जो होता है वो अनस्टेबल होता है. इट लूजेस CO2 while still bound to the enzyme. ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, उसके बाद जो ये डीकार्बोक्सिलेशन हुआ जहाँ पर उसने CO2 अलग किया अपने से आइसोसिट्रेट का, इज कैटेलाइज्ड बाय आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज. उसकी जो एंजाइम होती है वो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज होती है. सो वंस इट लूजेस CO2 इट बिकम्स स्टेबल. सो इस तरीके से आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट बनता है. ओके, moving forward to the next step which is number 4th step. उसमें this is also now oxidative decarboxylation step जहाँ पर अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनल को ए बनता है. अल्फा कीटोग्लूटारेट का फिर ऑक्सीडेशन होगा, देन डीकार्बोक्सिलेशन होगा जिसकी वजह से सक्सिनल को ए होगा. यहाँ पे भी CO2 जो है वो अलग हो रहा है, CO2 निकलेगा एंड NADH निकलेगा. सक्सिनल कोए बनाएगा वो अल्फा कीटोग्लूटारेट से. अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो होती है वो इस स्टेप को कैटेलाइज करती है एंड इट प्रोड्यूसेस NADH. उस रिएक्शन में NADH बनता है, CO2 बनता है और हाई एनर्जी थायोएस्टर बॉन्ड बनता है टू कोएंजाइम ए. एक कोएंजाइम ए से बहुत ही स्ट्रॉन्ग थायोएस्टर बॉन्ड बनता है बिटवीन सक्सिनल एंड कोएंजाइम ए. सो दिस इज द 4th स्टेप जहाँ पे सक्सिनल कोएंजाइम ए, NADH एंड CO2 रिलीज होते हैं. सो आफ्टर सक्सिनल कोएंजाइम ए इज फॉर्म्ड, रिएक्शन नंबर 5 होती है जहाँ पर सक्सिनल कोए से सक्सिनेट बनता है. वहाँ पर क्लीवेज रिएक्शन होता है जहाँ पर सक्सिनल कोए का थायोएस्टर बॉन्ड टूटता है. दिस इज कपल्ड बाय द फॉस्फोराइलेशन ऑफ ADP एंड GDP इनटू ATP और GTP. ATP और GTP बनता है उस रिएक्शन में. क्लीवेज रिएक्शन होती है, वहाँ पर सक्सिनल कोए का बॉन्ड टूटता है. बॉन्ड टूटने की वजह से GTP और ATP का फॉर्मेशन होता है, ADP और GDP का फॉस्फोराइलेशन की वजह से. दिस स्टेप इज कैटेलाइज्ड बाय सक्सिनल कोए सिंथेटेज. ATP और GTP बेसिकली एनर्जेटिकली इक्विवेलेंट होते हैं एंड ये एक ऐसा स्टेप, ये एक ओनली स्टेप होता है इसमें जहाँ पर डायरेक्टली कंपाउंड जो है वो निकलता है फॉस्फोरल ट्रांसफर की वजह से. सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की वजह से जो कंपाउंड है वो निकलता है. ये ऐसे सक्सिनल कोए सिंथेटेज इस एंजाइम इस रिएक्शन को कैटेलाइज करती है. ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू स्टेप नंबर 6. स्टेप नंबर 6 में क्या होता है, इट्स थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेप. थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेप होता है, इसमें सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनता है. सक्सिनेट से फ्यूमरेट कैसे बनेगा? सो व्हाट हैपेंस इज FAD जो होता है इट रिमूव्स 2 हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम सक्सिनेट. सक्सिनेट से वो हाइड्रोजन एटम्स को रिमूव कर देता है. सक्सिनेट से हाइड्रोजन एटम्स जैसे ही रिमूव होते हैं, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज रिएक्शन को कैटेलाइज करती है एंड जैसे ही वो हाइड्रोजन एटम निकलते हैं FAD की वजह से, तो इट फॉर्म्स FADH2. इट रिलीजेस FADH2 और कंपाउंड जो बनता है उसे फ्यूमरेट बोलते हैं. ओके, आफ्टर इन द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर, नेक्स्ट स्टेप में हम वाटर ऐड होता है. वाटर ऐड होने की वजह से फ्यूमरेट से मेलेट बनता है. मेलेट के बाद स्टेप नंबर 8 इज द लास्ट ऑक्सीडेशन स्टेप ऑफ द साइकिल. उस ऑक्सीडेशन स्टेप में जो कार्बन जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो वापस से कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है जिसकी वजह से ऑक्सैलो एसीटेट बनता है. ना ऑक्सैलो एसीटेट जो कंपाउंड
हमें फिर से नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट साइकिल को परफॉर्म करने के लिए चाहिए, वो कंपाउंड बन जाता है। सो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। सो ओवरऑल रिएक्शन इफ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ, एसिटाइल कोए प्लस हमने 3 NAD+ इन्वेस्ट किए, एक FAD इन्वेस्ट किया, GDP और ADP इन्वेस्ट किया एंड 3 वाटर मॉलिक्यूल इन्वेस्ट किए। उससे हमें क्या मिला? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 3 molecules of NADH, 1 molecule of FADH2, 1 GTP और ATP प्लस 1 molecule of water। इस तरीके से ये रिएक्शन जो है वो परफॉर्म की जाती है बॉडी में। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड दिस। इफ anybody have any doubts please do ask in the comment section। so energy yield per acetyl CoA, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जो होती है उसमें एक NADH बनता है, 1 NADH इज इक्विवेलेंट टू 2.5 ATP। अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज उसमें एक NADH बनता है जब वो एंजाइम यूज होती है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 2.5 ATP। सक्सिनल कोए सिंथेटेज जब एंजाइम यूज होती है तब 1 GTP बनता है, 1 GTP इज इक्वल्स टू 1 ATP। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जब यूज होती है तब 1 FADH2 बनता है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 1.5 ATP। एंड मैलेट डिहाइड्रोजनेज जब यूज होती है तो 1 NADH बनता है, निकलता है, वो 2.5 ATP के बराबर होता है। सो नाउ इफ यू कैलकुलेट ऑल ऑफ दिस, so it is equivalent to 10 ATPs, okay। so overall balance sheet पर acetyl CoA 3 NADH जिसका 7.5 ATP बना, 1 FADH2 जिसका 1.5 ATP इक्विवेलेंट है, 1 GTP is equals to 1 ATP। so total 10 ATP equivalents per acetyl CoA oxidized body को मिलते हैं इस साइकिल से, 10 ATP in one cycle, okay। like not 10 ATP in the organic form but equivalent if we consider, so 10 ATPs, ठीक है। एम्फीबॉलिक रोल ऑफ TCA साइकिल, एम्फीबॉलिक यानी कि केटाबॉलिक प्लस एनाबॉलिक, तो वो रोल कैसे प्ले करती है TCA साइकिल? केटाबॉलिक रोल इस तरीके से प्ले करती है बिकॉज इट इज हेल्पिंग इन ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल CoA टू जनरेट ATP। एसिटाइल CoA से ATP जनरेशन का जो मैकेनिज्म है वो यहाँ पर परफॉर्म हो रहा है, एसिटाइल CoA का ऑक्सीडेशन हो रहा है टू जनरेट ATP, दैट्स कैटाबॉलिक रोल। एनाबॉलिक रोल जो है वो इंटरमीडिएट्स प्रोवाइड कर रही है वो बायोसिंथेटिक पाथवेज, जैसे कि सिट्रेट निकलता है, सिट्रेट फैटी एसिड सिंथेसिस में काम आता है, अल्फा कीटोग्लूटारेट अमीनो एसिड सिंथेसिस में काम आता है, सक्सिनल CoA, पॉरफायरिन्स, हीम, ये सब इससे लाइक फॉर्मेशन हो सकता है, मैलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस में काम आता है, oxaloacetate amino acid and glucose synthesis में काम आता है। So these are all intermediates which can be used in the biosynthetic pathways, okay। Anaplerotic reactions और replenishment वो किस तरीके से होता है? पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, पायरुवेट जो होता है वो oxaloacetate में कन्वर्ट हो जाता है, जो मैंने लिंक रिएक्शन बताया उसके मदद से, like it converts into acetyl CoA। So citric acid intermediates are used in biosynthetic pathways as well, as I told you. Anabolic nature of the citric acid cycle, has raised few questions of how the level of intermediates can be replenished. जो intermediates का जो level है उसे replenish कैसे किया जा सकता है? When certain intermediates are removed for anabolic purposes. अगर एनाबॉलिक पर्पस के लिए कुछ रिएक्शंस, कुछ इंटरमीडिएट्स निकाल लिए जाते हैं साइकिल से बिकॉज टू सिंथेसाइज अमीनो एसिड और व्हाटएवर, तो उसको रिप्लेनिश कैसे करेगी क्रेब्स साइकिल? सो ये क्वेश्चन आया। सो देयर वाज अ साइंटिस्ट हु नेम्ड एज कॉर्नबर्ग, उन्होंने एक थीम प्रपोज की विच इज नोन एज एनाप्लेरोटिक रिएक्शंस। उन रिएक्शंस में he has proposed several reactions to tell कि किस तरीके से replenishment होता है या reactions fill up होती है वापस से। Animals के अंदर most important anaplerotic reaction is conversion of pyruvate to oxaloacetate by the enzyme pyruvate carboxylase। pyruvate जो है वो oxaloacetate में convert हो जाता है directly by the enzyme pyruvate carboxylase। प्लांट्स के अंदर या बैक्टीरिया के अंदर एक ऑल्टरनेटिव रूट होता है, लीड्स डायरेक्टली फ्रॉम फॉस्फोइनोल पायरुवेट टू ऑक्सैलोएसिटेट,
फॉस्फेनॉल पायरुवेट से डायरेक्टली ऑक्सैलोएसीटेट बन जाता है। ये रिएक्शन पीईपी कार्बोक्सिकाइनेज सिंथेसाइज करती है, यानी कि फॉस्फेनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम्स को सिंथेसाइज करती है। एक और रिलेटेड एंजाइम देखी गई है which is phosphoenol pyruvate carboxykinase, also converts phosphoenol pyruvate to oxaloacetate. Okay, so first enzyme was phosphoenol pyruvate carboxylase और सेकेंड एंजाइम मैंने यहाँ मेंशन की है पीईपी कार्बोक्सिकाइनेज। सो ये दो तरीके के एंजाइम है which can convert PEP to oxaloacetate. PEP stands for phosphoenol pyruvate. Okay, moving forward, मैलिक एंजाइम होती है जो पायरुवेट को डायरेक्ट मैलेट में कन्वर्ट कर सकती है, यू नो, इफ मैलेट इज नॉट प्रेजेंट। एंड अमीनो एसिड ट्रांसएमिनेशन अल्फा कीटोग्लूटारेट एंड अमीनो एसिड ट्रांसएमिनेशन से अल्फा कीटोग्लूटारेट एंड ऑक्सैलोएसीटेट बन जाता है। पायरुवेट टू मैलेट इज अ रिडक्टिव रिएक्शन बाय द वे। ओके, सो इस तरीके से दिस रिप्लेनिशमेंट ऑफ compounds is done. Now, regulation of citric acid cycle. This is a very important topic. How citric acid cycle is regulated? There are several parameters which are going to regulate this. First is substrate availability. Substrate होना चाहिए, to perform the reaction. Product inhibition. Product inhibit नहीं होना चाहिए because at any step if the enzymes are inhibiting the compound, then the cycle is not going to function. एंड एलोस्टेरिक फीडबैक इनिबिशन भी होता है एंजाइम्स का, जो एंजाइम्स इनिबिट कर देती है। अगेन एलोस्टेरिक इनिबिशन अगर हो रहा है या प्रोडक्ट इनिबिशन हो रहा है, किसी भी तरीके से इफ एंजाइम्स आर इनिबिटिंग द रिएक्शन, तो साइकिल आगे नहीं बढ़ेगी। सो सम इनिबिटर्स जैसे सिट्रेट सिंथेज है, दिस इज इनिबिटेड बाय एटीपी, एनएडीएच, सक्सिनल कोए, सिट्रेट सिंथेज। Isocitrate dehydrogenase, they are activated by ADP, calcium and inhibited by ATP and NADH. Alpha ketoglutarate dehydrogenase, they are inhibited by ATP, NADH, succinyl CoA. Availability of substrates होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मैंने कहा एसिटाइल कोए होना चाहिए, ऑक्सैलोएसीटेट होना चाहिए, NAD+ होना चाहिए। तो वो अवेलेबिलिटी ऑफ सबस्ट्रेट, एनर्जी चार्ज ऑफ सेल, जो सेल ये जो रिएक्शंस परफॉर्म कर रहा है उसके लिए उसके पास एनर्जी होना चाहिए, तो एनर्जी चार्ज ऑफ सेल भी होना चाहिए। ओके, नाउ इंटीग्रेशन विद अदर pathways, how this pathway is integrated or linked with the other pathways, links with glycolysis. Pyruvate, as I said, pyruvate can be converted to acetyl CoA. Pyruvate is converted to acetyl CoA. Pyruvate is the end product of glycolysis, so it is related to glycolysis in some way. PDH is phosphodecarboxylation, pyruvate decarboxylation, जो मैंने आपको बताया pyruvate acetyl CoA में convert होता है via PDH cycle. Pyruvate dehydrogenase enzyme के through, and this happens in pyruvate decarboxylation cycle. Okay. लिंक्स विद बीटा ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीडेशन से कैसे है, फैटी एसिड्स कैन बी कन्वर्टेड टू एसिटाइल कोए, तो बीटा ऑक्सीडेशन से लिंक्ड है। लिंक्स विद अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म से कैसे लिंक्ड है, कैटाबॉलिज्म टू टीसी इंटरमीडिएट्स, कैटाबॉलिज्म होने के बाद जो टीसी इंटरमीडिएट्स मिल सकते हैं, सो अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म से भी रिलेटेड है टू समवेयर। provides reducing equivalent NADH FADH2 for oxidative phosphorylation. ये जो NADH FADH2 जो भी इसके end products होते हैं that are needed for the next cycle, which is ETC or oxidative phosphorylation. So that's how each cycle is interlinked with the Krebs cycle, or a Krebs cycle is interlinked with each and every reaction happening in the body. Clinical significance of TCA cycle. What is the clinical significance? See, thiamine, vitamin B1 deficiency जो होती है, अगर विटामिन B1 की डेफिशिएंसी है, थायमिन की डेफिशिएंसी है, इट इम्पेयर्स अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज, वो अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज को इम्पेयर कर देती है, लाइक इट डज नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली. इफ दैट एंजाइम डज नॉट फंक्शन इज नॉट गोइंग टू फंक्शन प्रॉपर्ली, इट कैन लीड टू न्यूरोलॉजिकल इश्यूज. ओके, बिकॉज ये साइकिल प्रॉपर्ली नहीं परफॉर्म हो पाएगी. आर्सेनाइड पॉइजनिंग इनहिबिट्स लिपोइक एसिड कंटेनिंग एंजाइम. आर्सेनाइड पॉइजनिंग अगर हो जाती है तो जो लिपोइक एसिड कंटेनिंग एंजाइम होती है वो फंक्शन नहीं करती,
पीडीएच यानी कि पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज, वो एंजाइम्स जो होती हैं वो फंक्शन नहीं करती आर्सेनाइड पॉइजनिंग की वजह से। म्यूटेशंस इन एसडीएच, अगर एसडीएच में म्यूटेशंस हैं तो इट कैन लिंक और इट कैन लीड टू कैंसर। ठीक है, अगर एसडीएच इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, तो एसडीएच इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। सो म्यूटेशंस अगर सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज में होते हैं, इट कैन लीड टू कैंसर। एनाप्लेरोटिक डिफेक्ट्स, इम्पेयर्ड एनर्जी मेटाबॉलिज्म, अगर प्रॉपर जो इंटरमीडिएट्स है वो नहीं आ पा रहे हैं रिएक्शन में, अगर एनाप्लेरोटिक डिफेक्ट्स हैं, रिप्लेनिशमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा है मॉलिक्यूल्स का जो क्रेब्स साइकिल को चाहिए, तो एनर्जी मेटाबॉलिज्म प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा, बिकॉज क्रेब्स साइकिल नहीं परफॉर्म हो पाएगी, फिर ऑक्सीडेटिव नहीं हो पाएगी फर्दर। अगर ये साइकिल्स परफॉर्म नहीं होगी, एटीपी जनरेशन नहीं होगा, तो एनर्जी मेटाबॉलिज्म कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा, राइट। Summary of TCA cycle: complete oxidation of acetyl CoA to CO2 and H2O। इसमें जो एसिटाइल CoA है उसका complete oxidation होता है in 4 steps। CO2 like 4 steps oxidation के होते हैं, there are 8 steps जिसमें से 4 steps oxidation के होते हैं। तो वो complete oxidation होता है एसिटाइल CoA का to CO2 and H2O। It generates 3 NADH, 1 FADH2, 1 GTP or ATP per cycle and 1 water molecule। एम्फीबॉलिक, केटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों ही रोल्स कहीं ना कहीं ये साइकिल प्ले करती है। रेगुलेटेड सिट्रेट सिंथेज पे रेगुलेट होती है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज पे रेगुलेट होती है, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज पे रेगुलेट होती है ये साइकिल, बिकॉज ये अवेलेबिलिटी, सबस्ट्रेट अवेलेबिलिटी, इनिबिटर्स तो कहीं प्रेजेंट नहीं है, वो सब चीज़ें इम्पैक्ट करती है साइकिल को। And this cycle is the central hub of metabolism, which links carbohydrates, fats, and proteins. Right? I just explained you this, so I think you can link with that. Okay. So yeah. So thank you so much for tuning in. I hope this video helped you. And if this video helped you, please do like, comment, share, and subscribe to my channel. If you have any doubts or any if you are facing any challenges understanding any particular point, or if you have any suggestions, please do let me know below in the comment section. And if you have any particular topic of your choice to be explained by me, please do let me know below in the comment section. I'll be happy to make a video on whatever topics suggested by you guys. Thank you so much for tuning in. We will meet in the next video. Bye bye, take care.